ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸರಸ್ವತಿನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ನಮಗೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಮ್ಮ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಚಿತ್ರಮ್ಮ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಟೂ ಮಚ್. SP Balasubramaniam garu. So he's a legend and you're also legend. Don't compare me with SPB sir because he's a true legend. I'm his student. I have learned so much from him when we were singing together. You can do it, you can do it. That is SPB sir. என்ன பாட்டு பாடலாம்? என்ன பாட்டு பாடலாம்? ரம்பம்பம் ஆரம்பம். SPB. I have a big loss in my personal life. ಹಗಲಿರಲಿ ಇರುಳಿರಲಿ ನೀನಿರದೆ ಹೇಗಿರಲಿ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯ ನೀ ತುಂಬಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ನಾವು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸರಸ್ವತಿನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತ ಪದಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ whenever you come to Bengaluru? What vibe you get here? Bangalore is always a very vibrant city, and everybody, even the people, whoever I've come across, they all prefer to work in Bangalore because the weather is also good. Only now the traffic is little heavy now. Otherwise, it is a very good city to live. What brings you to Bengaluru today? I have come for the concert which is going to happen in Phoenix Market City, Whitefield. So this is the first time I'm performing in this Phoenix Mall. So I've never performed in a mall actually. So this is my first experience. So I'm also excited, and it's going to be a multilingual concert. People from all languages are going to come. So we are trying to incorporate all the languages. All the languages means all the main five languages into our concert. Okay, Amma, you have sung 20,000, more than 20,000 songs. Which songs? It's not the correct number. It is only 18, not more than that. No problem. So it will completely like ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ 20,000. Maybe I can complete 20 in the future. Amazing. Which song makes you inspired always? That is a very difficult question. Because I have sung so many beautiful songs for all composers. So it is difficult to just say one song. Amma, I must discuss about SP Balasubramaniam garu. So he's a legend and you're also legend. Tell me something about your camaraderie between SPB sir. Don't compare me with SPB sir because he's a true legend, and I'm his student maybe because I have learned so much from him. When we were singing together, he used to teach me how to express each and every word, and he even used to give me some tips. And you might have seen for all his concerts, he used to encourage all his co-singers by you can do it, you can do it. That is SPB sir. No, he promotes everybody, he loves everybody, and we all are so happy whenever he's around. Okay. That is SPB. He's a very vibrant person. Okay. Amma, is there any particular memories that you would like to cherish for the lifetime of SP Balasubramaniam garu? Not one or two. I have lot of moments with SPB sir. When you talk about this, suddenly a concert just came to my mind. We performed the show called The Legends. Not The Legends, I think it is SPB 50. SPB 50 concert. Charan was doing the concert, and that day people were so music lovers and they were enjoying each and every moment of the concert. They were clapping for the musicians if they improvise something which is not there in the
record, and they also improvise, no? So for that also, each and everything the people were enjoying. So SPB sir was in full mood, and I still remember him singing En Kadale. He was so involved, and after the concert, everyone stood, and the claps were going on for almost 5 minutes, I should say. So after the concert, he was so happy, and once he said vote of thanks and everything, people just shouted SPB, SPB, SPB like that. So that concert, and after the concert, he was almost in tears, and after coming back also, he messaged to all in our group. He said, "What more do I need?" And the people, I got so much love from all these people. That is what I need, and he was so overwhelmed. So I still remember that concert. Amma, you have given us lot of songs, and people have given you lot of love. What you have lost out among this journey? Lost. I have a big loss in my personal life. In music industry, I think I've got more than what I deserve. So one side I'm happy, and the other side I'm not happy. Amma, could you sing any one Kannada line for our Kannada audience? ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು, ಕಂಪನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡು. ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು, ಕಂಪನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡು. ಹಗಲಿರಲಿ ಇರುಳಿರಲಿ, ನೀನಿರದೆ ಹೀಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯ ನೀ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ಈ ತುಂಬು ಪ್ರೀತಿಯಲು ಕಣ್ಣ ಹಾಡಂತೆ ಕಾಯುವೆನು. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ನಮಗೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗಮ್ಮ ಅಂತ? ಅಯ್ಯೋ, all credits to my God and my parents and all my gurus. ಅಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಚಿತ್ರಾಮ್ಮ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? Too much. I can't answer that. ಫೈನಲಿ ಅಮ್ಮ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಇಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ? I've sung for almost all big actors movies. Rajkumar garu, then Vishnu sir, and Ramesh Arvind. For all of them, I have worked with in all their movies. ಅಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಸಿಂಗರ್? Of course, SPB sir is everybody's favorite. Jeshudas garu, Janaki amma, Sushilamma, and also the recent Shreya Ghoshal. I love all of them. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಗಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಚಿತ್ರಾಮ್ಮ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಬಿಟ್ಸ್. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್. ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು, ನನ್ನ ಎದೆಯ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತಾನೆ, ನೀನು ಇರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ನಾ ಹೇಳೆ ಜಾಣೆ. The great Rajkumar ji. ಇದು ಯಾರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವೋ? It's always coming to Bangalore is like coming home. ಈ ಕಂಗಳು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವೋ? You know, the original bungalow was called the White House, Rajkumar ji's house. Very emotional time, and ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪು ದಿನವೂ ಮನದಲ್ಲಿ. oh Maria, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಯಾಕೋ I love ನೀನೆ ನೀನೆ, I love ಕಿವಿ ಮಾತೊಂದು, ನನಗೆಲ್ಲ ನೀನೆ, ಮಾತು ನೀನೆ, ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ನೀನೆ, ನನ್ನ ಎದೆ ತುಂಬಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತಾನೆ.
ಪುನೀತ ಪರ್ವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕುನಾಲ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕುನಾಲ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ತಮಗೆ? It's always coming to Bangalore is like coming home. You know, this is part of my beautiful Bharatvarsh, and I've always loved the weather in Bangalore. I've always loved the people. I've loved the food. You know, I just feel very comfortable. ಸೊ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಗಾಯನ ನಮನ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಿತ್ರ, ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಅದು. ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್? Yes, very emotional time, and you know, the movie is ready for release now. And you know, when Ashwini and the family asked me about 2 months ago that they are going to pay tribute to our Puneet just before his first anniversary, you know, there was no way I was you know, not going to be available. So I moved my life around so that I could be here, because I want to be here. Okay. You know. Is there any particular fondest memory with Puneet Rajkumar sir? Would you like to share anything about that? You know, when we recorded Nine Nine, I actually had come to record Oh Maria. Oh Maria, oh Maria, oh Maria, in Akash only. And I was not supposed to sing Nine Nine. I didn't know. Man, that was the evening. I finished my recording, and after I finished my recording, Rajkumar sir, Dr. Rajkumar ji, the great Rajkumar ji, he told Puneet that I want Kunal to sing Nine Nine. And it was already about, we had finished the song, it was about 10 o'clock in the night. And the track wasn't ready. So Puneet and Ashwini was expecting her second child then. Okay. They all came to my dear friend Prakriti Banwasi's house. So Prakriti and Puneet have written the biography of Dr. Rajkumar. That's Prakriti Banwasi, my friend. And it's through him that I met Puneet, because Puneet wanted me to sing for him, but he didn't know how to get through to me. So that was 2005, and so then we all had dinner, and then they told me what Appaji's request was, and so I said, tomorrow I can't sing it. I'll come back another day if you don't mind, because I'm already singing in Bombay for someone. So I have to leave by the 9 o'clock flight in the morning. So the track wasn't ready. So they said, then as we were having dinner, I said, if you can get the track ready tonight, I'll record at 6 in the morning. Okay. From 6 to 8, and then I'll head to the airport. At 6 to 7. Okay. And then 8 o'clock, if I'm at the airport, I can take the 9 o'clock. That's exactly what happened. They got the track ready. I was in the studio at 6. It was Appaji's wish. Wow. And we recorded the song. We finished at 7, and then they smuggled me literally to go to the White House. You know, the original bungalow was called the White House, Rajkumar ji's house. We went there, and Dr. Rajkumar, Amma, Appa, they were so kind. He was busy shooting, so Ashwini was there. And you know, it's beautiful. Okay. You know. How you catch the word, sir? Well, I'd like to thank Prakriti for that. Prakriti, come here. I'd like to thank Praku, because Praku taught me all my Kannada, my initial first song. So he got it down, because you know, he's a writer, he's a journalist, he's so many things, and he's also the first person who started Banwasi English classes 27 years. So he's the founder and the CEO. But he taught me my Kannada. Okay. Could you please sing 2 lines for our audience? Nanagella neene, maatu neene, manasella neene, ನನ್ನ ಎದೆಯ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತಾನೆ, ನೀನು ಇರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ನಾ ಹೇಳೆ ಜಾಣೆ, ನೀನೇ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನೀನೇ. I don't know what to speak because I'm totally blank, sir. Sir, which is your favorite song among the songs which you have sing so far? Nine Nine. For Puneet, I love Nine Nine. I love Kivi Matondu. I like the other song. I forget. There's another song I did in Mysore. Ninna Kandakshan. Ninna Kandakshanadinda yago. Correct. Yeah. Okay. So any Hindi songs, sir? Would you like to share anything about that? I've sung more than 700-800 songs in Hindi, so of course. Sir, एक बार last. I've sung it in Kannada, by the way. हाँ sir. In that murder movie. Murder. But I'll do that another day, because I think the hotel people have some obligation. Thank you. Thank you. All so the much, best. sir. Nice talking with you. You too. Thank you. नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए
स्पेशली साउथ इंडस्ट्री ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तेलुगु इंडस्ट्री ने। ಎಲ್ಲಿಪೋಕೆ ಸಾವರಿಯ ಉಂಡಿ ಪೋವೆ ಓ ಘಡಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ। ಅದು ನಾನೇ ತಾನೇ। सर आपको कन्नड़ा सॉन्ग्स और भी ज्यादा करने चाहिए सर, हमारा डिमांड है ये। मैं तो करना चाहता हूँ। अब वहाँ के जो कंपोजर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझसे कन्नड़ा गाने बहुत ज़्यादा गवाइए। कन्नड़ा इंडस्ट्री में मेरे विजय प्रकाश बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। ಬೆಳಕನ್ನು ತಿಂತದೆ ಎಲೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿಂತದೆ ಮೇಕೆ। बेंगलुरु का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ನಮ್ಮ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಕ್ಕಕೂಲು ಬೆಂಗಳೂರು। सुपरस्टार सिंगर का हमने सीजन किया ना, तो उसमें मनी करके एक लड़का था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और उसका गाने का अंदाज बहुत अच्छा था। हो जा जरा पैश के दी खोलो गुत्तियां, जरा पैश के दी खोलो गुत्तियां। क्या बात है। बारिश हो रही है तो मुझे किशोरदा का वो गाना याद आता है, रिम झिम गिर सावन सोलग जाए मन। नेचर एकदम, उस प्लेस को देख के कौन सा गाना आता है माइंड में आपके? ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। आ गए हम कहाँ। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास दो। आ गई मन को रास रास अब तो तू आजा पास पास। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರಫೀಕ್ ದರ್ಬಾರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಉದ್ಯಮಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಾಸಕರು, ಮುಳಬಾಗಿಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸಮೃದ್ಧಿಯೇ ಗುರಿ. ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ, ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಸಕರು. ಉದಯ್ ಬಿ ಗರುಡಾಚಾರ್, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಲಗ್ಗೆರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲೋ ಇದು ಸಿನೆ ಬೀಟ್ಸ್. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್. ಇವತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಮನೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ, ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕ, ಗಾನಗಾರುಡಿಗ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಶೋ. थैंक यू वेरी मच। सर जिंदगी क्या कुछ सिखाती है और क्या कुछ सिखाने के बाद क्या कुछ बदल देती है? ज़िंदगी है ना, जैसे जैसे आप जीते रहते हो, जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते रहते हो, वैसे वैसे आप सीखते रहते हो और हर पल कुछ ना कुछ सिखा के जाता है आपका। हर लम्हा हर दिन कुछ ना कुछ एक नई सीख देकर जाता है। जैसे जैसे आप ग्रो करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, तो बहुत कुछ सीखते रहते हैं। ओके सर, आपने करियर बहुत जोर शोर से स्टार्ट किया था, मतलब स्ट्रगल का बार बोल रहा हूँ मैं। जोर शोर का स्ट्रगल था, अब जोर शोर की सक्सेस है। कैसे देखते हो आप इन दोनों को? सर आई डोंट नो, मेरी लाइफ में कभी भी है ना ऐसा नहीं कि ना सब कुछ स्थिर रहा है और सब कुछ सटल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी मुझे फेम मिल गया या बहुत जल्दी है ना मुझे बहुत सारे गाने मिल गए, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हुआ है जो भी कुछ हुआ है। और मुझे लगता है कि ना धीरे धीरे जो चीज़ होती है वो ऐसा सुना है, मुझे पता नहीं है, बुज़ुर्गों से सुना है कि ना वो बहुत लंबे वक्त तक चलती है। क्योंकि एकदम सब कुछ मिल जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ एक अंकुश आ जाता है। तो मुझे मेरी लाइफ में सब कुछ आराम से मिला है और अभी भी आराम से मिल रहा है। हाँ। तो जो भी मिला है ऊपर वाले ने बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका कि उसने मुझे सही वक्त पे और सही चीज़ दी है। सर गलियां बदल जाती है लेकिन यादें नहीं बदलती। आज भी जो गलियों से आप गुजरते हो, उन गलियों को देख के क्या याद आता है आपको? जहाँ से जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ तो मैं वहाँ पे अपना बचपन याद करता हूँ, अपने दोस्त याद करता हूँ, अब वहाँ का खाना मिस करता हूँ। ऑफ कोर्स जाता रहता हूँ मैं कॉन्सर्ट्स वगैरह में, लेकिन जब भी जाता हूँ तो हमेशा एक नयापन लगता है और हमेशा बार बार जाने का दिल करता है वहाँ पे। और ऑफ कोर्स जहाँ पे मैं बॉम्बे में भी रहता था, जिस जगह रहता था जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था या स्ट्रगल करता था, या पहली वो जगह जहाँ पे मैं रहता था वो हमेशा याद रखता हूँ, कभी भूल नहीं सकता। भले ही मैं कहीं भी चला जाऊँ लेकिन वो पहली चीज़ हमेशा याद रहती है। सर कन्नड़ा में कौन सा गाना आपने पहली बार गाया था? क्योंकि आपने बहुत सारे गाने गाया था श्रेया घोषाल जी के कॉम्बिनेशन में। हम लोग सुनते रहते हैं कन्नड़ा में। हाँ,
जी मैं कन्नड़ा, अब मुझे फिल्मों के नाम पता नहीं है, लेकिन कुछ गाने गाए, लेकिन तेलुगु ज़्यादा मैंने गाया है। तेलुगु, तमिल ज़्यादा गाना है, कन्नड़ा भी गाया है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम गाया है तेलुगु से और तमिल से, बट गाया है। अब मुझे पता नहीं कौन से गाने हैं सर। चिंगारी मूवी का एक गाना था डी बॉस का, चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर का, और एक गाना था अलेमारी सिनेमा का, जो कि अदुना ना 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 ने ताने। अच्छा, वो मुझे याद भी नहीं आ रहा है गाना। ओके। मतलब कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल लैंग्वेज कैच करने में आसान होता है आपको या मुश्किल होती है सर? शुरू शुरू में बहुत डिफ़िकल्टी आती थी कुछ वर्ड्स को लेकर, लेकिन अभी नहीं आती, क्योंकि काफ़ी सालों से हम गा रहे हैं, तो ना जब भी गाने का ऐसा मौका मिलता है तो मैं अभी कोई टेंशन नहीं आती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं उन वर्ड्स से, तो आसानी से गा लेते हैं। तो जब नई कोई चीज़ रहती है तो उसको उसमें आपको यूज़ टू होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जब हो जाते हैं तो फिर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो वैसा भी ऐसा है, स्पेशली साउथ इंडस्ट्री ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तेलुगु इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया, बहुत बड़े गाने मुझे मौका मिला है गाने का, और बहुत सारे गाने अभी रिलीज़ भी हो रहे हैं, रिलीज़ हो चुके हैं और गाए हैं मैंने। उपेना फिल्म का गाना निकन्नू नीली समुद्रम, और गुलाबी कल्लू रेंडू, और पुष्पा तो हिंदी का था। तो वही वो सभी गाने सभी के साथ में मज़ा आया। और जिस तरह से दोनों इंडस्ट्रीज़, जैसे बॉलीवुड और टॉलीवुड, दोनों इंडस्ट्रीज़ मुझे बहुत प्यार करती हैं, और मुझे हमेशा से ही बोला जाता कि ना, ये आपके लिए कुछ ख़ास गाने जब होते हैं तो आपको बुलाया जाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ना मुझे एक जो कोई स्पेशल चीज़ होती है उसके लिए याद किया जाता है, तो आई एम वेरी हैप्पी। ओके सर, मुझे एक सवाल हमेशा दौड़ता रहता है माइंड में, ये सुरीली आवाज़ कैसे बनती है? भगवान कैसे देता है सुरीली आवाज़? सर, अगर मैं पूछ पाता तो मैं ज़रूर पूछ लेता ऊपर वाले से, लेकिन कोई भी नहीं पूछ सकता। ये उसकी मर्ज़ी है, और वो जिसको समझता है उसी को देता है, और बस ये गॉड गिफ्ट है। अब खुदा का दिया हुआ गिफ्ट तो अनमोल ही होता है। करेक्ट। तो मैं बस उनमें से मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि वो गिफ्ट मुझे भी मिला है, और बस जितना शुक्राना अदा किया जा सके कम है। ओके सर, आपने हैदराबादी स्लैंग सुनी है? हाँ, ऑफ कोर्स सुनिए। कुछ बोलना चाहोगे हैदराबादी स्लैंग में? हैदराबाद में कहाँ को जाता ही, मैं बाता करता ही, ये ऐसा कुछ एक्सेंट रहता है। और आपकी खातिर आप कुछ क्या तुम ही बाता करता ही, ऐसे सब रहता है। महमूद जी की याद आती है जब है ना मैं हैदराबादी लैंग्वेज सुनता हूँ। तो उनका ज़्यादा ये रहता है। जब मुझे ना, जब भी मैं हैदराबाद जाता हूँ और मैं वहाँ जाके अपने कोई, जैसे ना कोई ड्राइवर मुझे लेने के लिए आए हैं, तो वो हैदराबादी लैंग्वेज में बात करते हैं, और वो फ़ोन पे बात करते रहते हैं, और मैं बैठा रहता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनना। क्योंकि इतनी स्वीट लैंग्वेज है हैदराबादी, और बहुत ही नेचुरल, और बहुत ही उसके अंदर एक जो एक्सेंट है वो स्पेशली, वो बहुत अच्छा लगता है। कभी मतलब बेंगलुरु की उर्दू सुना है आपने? बेंगलुरु में आया हूँ, लेकिन वहाँ ज़्यादातर उर्दू मैं नहीं गा, क्योंकि आया बहुत, मैं आया और होटल में रुका, फिर शाम को शो किया, नेक्स्ट डे निकल गए। ऐसा कभी एक दो दिन रुकने का मौका मिला नहीं है। ओके। बतौर कन्नड़ा तो आप गाना गा चुके हो, कुछ बोलना चाहोगे कन्नड़ा में? कन्नड़ा में मुझे पता नहीं है, आप बोल दीजिए, मैं इसको रिपीट कर दूँ। क्या बोलना चाहोगे आप कन्नड़ा ऑडियंस को? मैं कन्नड़ा ऑडियंस को बहुत धन्यवाद करता हूँ, ऐसा बोलो। ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ। सदा निन्ना जोते इरली। करेक्ट सर, मतलब आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, ऐसे कुछ। ओके, कोई 2 लाइन हो जाए सर। कहाँ? अब कोई भी गाना। ओके, मैं एक तेलुगु गाना सुनाता हूँ। मैं मेरा जो गाया हुआ है उप्पेना मूवी के लिए।
నీ కన్ను నీలి సముద్రం నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం నీ నవ్వు ముత్యాల హారం నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం నల్లేనైనా ముంగురులే అల్లారే దోరే బాయిలే उसके आगे मुझे याद नहीं है నీ కన్ను నీలి సముద్రం నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం నీ నవ్వు ముత్యాల హారం నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం अमेजिंग सर। मैं सिनेरियोज बोलता हूँ, आप वो सिनेरियोज के हिसाब से 2-3 लाइन सुनाते जाइए सर। मतलब आप सोलो ट्रिप कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, उस गाने के बगैर आपका ट्रिप कंप्लीट नहीं होता, तो कौन सा गाना बजता रहता है आपकी गाड़ी में? ऐसा नहीं, मेरा हमेशा चेंज होता रहता है। मैं कभी जो मूड रहता है, जैसे कभी मैं थोड़े अपबीट गाने भी सुनता हूँ, या जैसे किशोर दा के गाने कभी सुनने लगते हैं, रफ़ी साहब के गाने, या जैसे कभी ना क्लासिकल का मूड होता है तो मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, या फिर गज़लों का मूड होता है तो उस्ताद गुलाम अली खान साहब, मेहदी साहब, जगजीत सिंह जी, सबको सुनता रहता हूँ। कोई मतलब सिचुएशन के हिसाब से सर, अगर वहाँ पे रेन हो रहा है, बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, कोई गाना आता है माइंड में तो कौन सा आता है हमेशा? हाँ, जैसे बारिश हो रही है तो मुझे किशोर दा का वो गाना याद आता है, रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन झिम झिम गिर सावन। ओके, जब आप कहीं घूमने जा रहे हो, बरसात के साथ साथ ग्रीनरी है, वहाँ पे बहुत सारे हरा भरा हुआ जंगल ऐसे कुछ रहता है, नेचर एकदम, उस प्लेस को देख के कौन सा गाना आता है माइंड में आपके? ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ है मेरे साजना इन बहारों की खिलती कली खिल गई मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। सर, गाना गाना बहुत मुश्किल है, उसके बाद गाना गाने वालों को चुनना उससे भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जज की सीट पे आप जब बैठते हो तो कितना डिफिकल्ट रहता है सर वहाँ पे? सर बहुत डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि बहुत ही कमाल कमाल के टैलेंटेड सिंगर्स आते हैं और हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं क्योंकि नया नया ना कुछ स्टाइल लेकर आते हैं सब ना। तो हम सोचते हैं कि ना, मुझे लगता है कि ना कभी भी कोई भी आर्टिस्ट वो हमेशा स्टूडेंट ही बना रहे, तो वो ज़्यादा प्रोग्रेस करता रहता है, बढ़ता रहता है। तो मैं हमेशा अपने आप को वो स्टूडेंट ही बना के रखता हूँ और सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ बस। सर, बहुत सारे आपने सीजन्स देखे होंगे, आपका लाइक बेहद पसंदीदार, मतलब ये आवाज़ मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, ऐसे कुछ रहता है ना सर कोई कंटेस्टेंट को देखने के बाद? जब अभी ना सुपरस्टार सिंगर का हमने सीज़न किया ना, तो उसमें मनी करके एक लड़का था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और उसका गाने का अंदाज़ बहुत अच्छा था, बड़ा दिल से गाता था, तो वो मुझे बहुत पसंद था। सर, आप जब बेंगलुरु आते हो तो मतलब वहाँ पे क्या कुछ अच्छा लगता है आपको? तो बेंगलुरु का एक तो ट्रैफिक बहुत ही ख़तरनाक है और बेंगलुरु का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और हमेशा एक जैसा क्लाइमेट रहता है और मैं समझता हूँ जो लोग वहाँ रहते हैं वो ब्लेस्ड हैं क्योंकि वो इतने अच्छे क्लाइमेट में, इतने अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं और उनको किसी हिल स्टेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं, वो नेचर के साथ में रहते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात लगती है। सर, आपको कन्नड़ा इंडस्ट्री में कोई क्लोज फ्रेंड्स ऐसे कुछ है सर, सिंगर्स हो या फिर एक्टर्स? कन्नड़ा इंडस्ट्री में मेरे विजय प्रकाश बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो। उनको मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा। कन्नड़ा ही है ना? कन्नड़ा ही है सर, विजय प्रकाश। तो और सर से फेस मिलती है थोड़ा। हाँ, दोनों सिमिलर लगते हैं और मुझे लगता है उनसे मैं इतना नहीं मिला हूँ। मानव सर से मिला हूँ, तो तमिल इंडस्ट्री के हैं ना, मानव। अर्जुन जन्या सर हैं हमारे। मैं एक्चुअली विजय को बहुत अच्छे से जानता हूँ, विजय भाई को। तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वेल सर, एक फाइनल लाइन सर, गुजारिश की, वो आमिर खान सर की मूवी थी, हाँ ठीक है, उसकी 1-2 लाइन सर। हाँ,
तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो तू आजा पास पास है गुजारिश कह दे तू हाँ तो जिंदगी झरनों से छूट के हंसेगी मोती होंगे मोती राहों में तू मेरी अधूरी प्यास प्यास। अमेजिंग सर, आपको कन्नड़ा सॉन्ग्स और भी ज्यादा करने चाहिए सर, हमारा डिमांड है ये। मैं तो करना चाहता हूँ। अब वहाँ के जो कंपोजर्स हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझसे कन्नड़ा गाने बहुत ज़्यादा गवाइए, क्योंकि मैंने तेलुगु तमिल तो बहुत सारे गाता ही हूँ ऑफकोर्स में, कन्नड़ा थोड़े से कम गाए हैं। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि मैं कन्नड़ा इंडस्ट्री में भी और बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने गाऊँ। सर आपने कोई कन्नड़ा फिल्म देखी है सर? सर नहीं देखी मैंने। KGF, कांतारा? KGF का थोड़ा सा हिस्सा देखा है, लेकिन KGF फिल्म पूरी नहीं देखी, लेकिन सारी ब्लॉकबस्टर और बहुत ही कमाल की फिल्म है, आइकॉनिक फिल्म्स मैं बोलूँगा, क्योंकि आज के टाइम में चाहे जो भी जिस तरीके से भी कहो, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, उन्होंने कितना कमाल का बिजनेस किया। और पूरी कन्नड़ा ही है ना KGF, तो ये सारी फिल्में कंटारा ना, तो ये सारी फिल्में बहुत ही ज़बरदस्त की है। तो मैं भी चाहूँगा कि कन्नड़ा और मैं बहुत सारे गाने गाऊँ, और अपने फैंस जितने भी लोग चाहते हैं मुझे, और एक अलग अंदाज में उनके सामने आऊँ। वाह, अमेजिंग। इंतजार रहेगा सर आपका, जरूर आना कन्नड़ा में। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿಸೋದಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಕೇಳುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಪದಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಹಿತ್ತು ಸಿನೆ ಬೀಟ್ಸ್. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಅಜರ್ ಜೊತೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣಿಡಗೆರೆ ಹಾಯೇ ಮೇರಿ ಆಂಖೆ ನಾನು ರಾತ್ ಭರ್ ಕರೆ ಬಾತೆ ತೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರುಕ್ ರುಕ್ ಚಲೆ ಸಾಸ್ ಮೇರಿ ಯೋಹಾನಿ ತಲಾಂಗ ಮದವತನ. Honestly, I really like Bangalore. It's raining here right now. I'm not too sure whether successful is the right term. hangover. Sridevi. It has been a long journey for me. Ruanari manhari sukumali numbatama. Sridevi. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆದಂತಹ ಬೆಡಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಫೀಲ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಸಿಟಿ? I really like Bangalore because it reminds me of home. There's a lot of greenery and I love it here. Okay. And the weather. What was in your mind when you landed into the city? It reminded me of home, like with the trees and the weather. It's raining here right now, and it just reminds so much about of my home country. Oh, is this your first visit? Have you ever been to Bengaluru before? Yes, this is my second visit. Oh my God. Okay. What about food and places wherever you have gone to? Food, I'm trying it tomorrow actually. I wanted to try the food here, so I will be able to tell you tomorrow. So how you get into this world of music? Music, well, I think from my childhood, music has been something I really like, but I never wanted to become a singer back then. But then I guess the trajectory of my life changed midway. Probably in 2019, I decided to start my career in music. Being so successful singer, was it a cakewalk for you, or it just like there was up and downs? How was it happen? I'm not too sure whether successful is the right term, but it has been
since 2016 that I've been figuring out a way in music. So it has been a long journey for me. But for the song, if you're asking about the song Manike, it has been just 1 year. Oh, amazing. Okay, could you please sing that lines for our audience? One in Hindi or Sinhalese? Hindi. हाय ये मेरी आँखें रात भर करे बातें तेरी, ये तेरी आए जो तेरी यादें रुक रुक चले सांस मेरी, ये मेरी हाँ मुझे प्यार है तुमसे हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ मनहारी तन्हारी सुकुमारी प्रियतमा हितलांग मदावटेना हुरुपेम कपटलेना रुअनारी मनहारी सुकुमाली नुबतमा. Wow, amazing. How do you catch that words, Hindi words? It took a long time. It took couple of months for me to figure out the Hindi pronunciation. I still think I can do much better. Maybe few months to come, but this is all I've learned for now. Okay, wherever we go, we can listen your voice, whether it is bus stand or it metro station. How does it feel? Have you thought anything that, yes, I will do this in future? No, absolutely not. It's a little bit overwhelming at the moment, but I am really honored and humbled by all the love that I'm getting. Okay. So I must ask this question. Have you seen any Kannada films, anything you connect with Kannada film industry? Not yet, but I have got a few suggestions. I will check it out. If you know, you tell me. I will check it out. Okay. Would you like to say anything to Kannada audience? I'll prompt you in Kannada. You can speak. Okay, you tell me. Okay, what you would like to say? I want to say thank you all for supporting my music. How do I say? Okay. ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ, mention your name. Yohani. What you said? Thank you for support. No, I said thank you for supporting my music. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾರೈಕೆಗಾಗಿ, ಹಾರೈಕೆಗಾಗಿ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So, have you seen any Kannada films, ma'am? KGF Chapter 2? I watched the trailers. I am yet to watch the movie. Oh, amazing. So, thank you so much. Lovely talking with you. Thank you. You too. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಯೋಹಾನಿ ಅವರ ಮಾತು. ಅದೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಕಾಚ್ ಹರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದಿಷ್ಟು ಯೋಹಾನಿ ಅವರ ಮಾತು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಇದು ಸಿನೆಬಿಟ್ಸ್. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್. ದಿಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ನೀನಾದೇನಾ ನೀನಾದೇನಾ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ. Like to wish him the best of luck for Kranti and वो D boss नाम से जाने जाते हैं, तो he is always the boss. ये वापस मतलब मुझे टफ क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं सब. इन्होंने बाउंसर फेंक दिया मेरे ऊपर. All Kannadigas love my music, my voice, and I love them. इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए. First and only crush, Deepika Padukone. ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನೀಗ. ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್. Hi guys, welcome to Pan Indian Talk Show Hello Hiddu. This is Syed Hidayat and you're watching Hello Hiddu Cine Beats. So ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ಇಂಪಾದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಇಂಚರ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚ ಹಸಿರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕಂಠ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಹೌದು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕೋಗಿಲೆ. ಸೊ ಆ ಕೋಗಿಲೆನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುದ್ದಿನ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ. समझ में आया मैं क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं समझ. मैं बोल रहा था कि सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु गार्डन सिटी है, ग्रीनरी हर जगह है. वो हरियाली में एक कोयल की सुरीली आवाज सुनने के लिए बहुत खूबसूरती रहती है. तो वो कोयल मेरे साथ बैठी है.
So sweet. Thank you so much. Okay, welcome to Bengaluru. What vibe you get when you come to the Bengaluru? Firstly, I get a lot of love here because all Kannadigas love my music, my voice, and I love them. So it's a beautiful relationship I have with the music listeners here, the fans here. मुझे बहुत मजा आता है यहाँ पे परफॉर्म करना एंड इस शहर का वाइब भी बहुत अच्छा है. काफी विंडी भी है, काफी अच्छा वेदर है. एक ही चीज है जो probably मुझे अच्छी नहीं लगती, वो है ट्रैफिक. That's the only thing. Otherwise, I love Bengaluru a lot and I love the people here. क्या कुछ टेस्ट किया बेंगलुरु में, क्योंकि आप हैदराबाद से बहुत कनेक्टेड हो. वहाँ पे हैदराबादी बिरयानी मिलती है, डबल का मीठा मिलता है. बेंगलुरु में क्या कुछ मिला आपको? अभी तक कुछ नहीं खाया है स्पेशलिटी बेंगलुरु में. पता नहीं, I don't know why I've never had, but if you have some suggestions, you tell me, तो मैं वैसे खाऊंगा. आप रागी बॉल खाओगे? मैंने सुना है बहुत रागी बॉल के बारे में. रागी बॉल, नाटी कोड़ी सारू, which is नाटी कोड़ी रहता है ना, चिकन करी. हाँ. वो रहता है, एकदम बढ़िया रहता है. हर एक्टर यहाँ पे वही खाने के लिए पसंद करता है, और मसाल डोसा. चलो अमेजिंग, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा. 100%. ओके, तो कैसे रहता है सर? हर वक्त आप बेंगलुरु आते रहते हो, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सर्ट भी करके हो, तो क्या फील रहती है जब भी आप बेंगलुरु में गाना गाने के लिए स्टेज पे आते हो? तो क्या फील रहती है आपकी? बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है सबसे पहले, क्योंकि बेंगलुरु में जब भी मैं लैंड होता हूँ तो बहुत प्यार मिलता है मुझे. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ के जो लिसनर्स हैं, कन्नडिगा लिसनर्स हैं, और जो मेरे गाने हिंदी में भी सुनते हैं और कन्नडा में भी सुनते हैं, उनसे इतना प्यार मुझे मिलता है. तो आई ऑलवेज गो 100% एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरा जो कॉन्सर्ट है वो मेरा बेस्ट रहे. एंड कल भी जो हम लोग ने गणेश उत्सव पे परफॉर्म किया, तो मेरा यही दिमाग में चल रहा था कि हाउ कैन आई गिव माय बेस्ट परफॉर्मेंस हियर इन बेंगलुरु. ओके, तो मेरे पास थोड़े एक्टर्स के फोटोज हैं, कन्नड़ा एक्टर्स के. मैं उनके फोटोज दिखाऊंगा आपको, उनको गाना डेडिकेट करना पड़ेगा आपको. ओके, तो पहली फोटो ये रही. अरे रॉकी भाई. हाँ. What any song? Any song. Okay. वो जो उनकी पर्सनालिटी को सूट करे. There's a song called Parinda, which is from the movie Saina, composed by my brother. मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है. Wow. So the meaning of this is that why should I become a bird when I can become the whole sky? Amazing. Okay. Okay, next photo. Oh, this brings a lot of emotions. I would like to dedicate the song that I have sung for Appu sir. Neena Dena. गाओगे आप पुनीत सर के लिए? ನೀನಾ ದೇನಾ ನೀನಾ ದೇನಾ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೀವನ ನೀನಾ ದೇನಾ ನೀನಾ ದೇನಾ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೀವನ. अमेजिंग. तो पुनीत सर से कभी मुलाकात हुई थी? उनसे कभी नहीं हुई. अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे मिल नहीं पाया. बहुत मतलब चाहत थी दिल में कि यार मैं एक बार उनसे मिलूं, लेकिन उनके लिए गाना गाया वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. वाओ, अमेजिंग. ओके, नेक्स्ट फोटो. आप बहुत चाहते हो इनको, लास्ट टाइम हैदराबाद में भी बोल रहे थे इनके बारे में. डंग डंग डडडडडंग डंग डंग ಒಂದು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ಮಳೆ ಮೋಡ ಹೇಗೋ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದೆ ಭಾವನೆ. उतना ही आता है. ओके, तो दर्शन सर के बारे में, उनकी क्रांति फिल्म बहुत बड़ा साउंड कर रही है. तो आपको पता है क्रांति के बारे में? मैंने नहीं देखा एक्चुअली. रिलीज हो चुकी है? नहीं, रिलीज नहीं हुई अभी. सेट में है, रिलीज होने के लिए रेडी हो रही है. तो क्या विश करना चाहेंगे दर्शन सर को? बस आई वुड लाइक टू विश हिम द बेस्ट ऑफ लक फॉर क्रांति. एंड वो डी बॉस नाम से जाने जाते हैं, तो ही इज ऑलवेज द बॉस. और हाईएस्ट गूगल में सर्चिंग में पर सेकंड के लिए मतलब 16 मिलियन सर्च होते रहता है उनका नाम. वाह, अमेजिंग. मैं उनसे काफी मतलब बात भी हुई मेरी. मैं मैसूर में था एक कॉन्सर्ट के लिए थोड़े साल पहले, तब उनसे बात हुई थी. एंड आई होप टू मीट हिम सून. ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, आपको फटाफट पूछते चले जाता हूं मैं.
आपका गाना जो आपने इतने सालों में गाया है, उनमें उस गानों में से कौन सा गाना आपके बेहद दिल के करीब है? ओके, हिंदी, कन्नड़ा? हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, एनीथिंग? हिंदी में there's a song called मैं रहूं या ना रहूं. हाँ, मैं रहूं. That song is very, it's very close to my heart. In Kannada, there is. When I lost my mom, I used to listen that song. Oh my God. हर दिन सुनता रहता था. जब कॉलेज को जाता था तो हाथ में एक बुक रहती थी, एयरफोन्स रहते थे कान में, और ये गाना गूंजता रहता था. बहुत यादें ताज़ा करता है वो गाना. मैं रहूं या ना रहूं बहुत ही एक स्पेशल गाना है. मुझे भी, मतलब मैं अपने दादा को मिस करता हूँ, दादा और दादी को, तो वो गाना सुनता हूँ. गा सकते हैं सर आप? मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, 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 मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना. ओके, मैं रहूं या ना रहूं, तुम ख्वाबों में आते रहना. आपके ख्वाबों में किसकी आने की ख्वाहिश है आपको? ख्वाबों में मेरे एक्चुअली मेरी दादी बहुत आती है याद मुझे. एंड रिसेंटली शी पास्ड अवे. एंड अभी भी मैं जो भी गाने गाता हूँ, स्टेज पर अगर चढ़ता हूँ तो उनको याद करके जाता हूँ. तो ख्वाबों में आई होप टू कीप मीटिंग हर इन माई ड्रीम्स. ओके, तो सर कोई ऐसी मेमोरीज रहती है जो हमेशा के लिए आप चेरिश करना चाहते हो, चाहे वो हैदराबाद से हो या फिर चाइल्डहुड से हो, वो मेमोरी हर वक्त आती है, वो एक गाना सुनने के तुरंत आपके माइंड में वो यादें ताज़ा हो जाती है, ऐसी कोई मोमेंट्स है? एक गाना था, मैं एक्चुअली बेंगलुरु में था और रेडियो पे गाना सुन रहा था. So this was from the Mungaru Malay first one, and when I heard that sung by Sonu ji, and he is one of my idols, and I've always followed him and his singing. तो तब मैंने सोचा था कि यार काश मुझे भी एक ऐसा गाना गाने को मिले कन्नड़ा में. And fast forward a few years, and I get to sing Sariyagi for Mungaru Malay. Sariyagi ne which is like it feels like जब लाइफ फुल सर्किल आती है, आप एक गाने को सुनते हो, उसके साथ जो मेमोरीज होती है, तो बेंगलुरु के साथ जो मेमोरीज है मेरी वो है अनिसुते, एंड उससे फिर कंप्लीट होता है मेरी मेमोरी सरियागी के साथ. वाह, तो वर्ड्स कैसे कैच करते हो आप? आप कन्नड़ा भी गा चुके हो, हिंदी भी गा चुके हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम. वर्ड्स कैसे कैच करते हो? क्योंकि 1, 2, 3 लैंग्वेज होके चलेगा, लेकिन हर लैंग्वेज में अपनी पकड़ रखना आसान नहीं होगा. आसान तो नहीं है, लेकिन काफी प्रैक्टिस हुई है मेरी. बचपन से ही, मैं 9 साल की उम्र से ही काफी अलग लैंग्वेजेस में गाते आ रहा हूँ, बीट हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल. एंड जब एक चीज को आप बहुत बार करते हो तो आप अच्छे हो जाते हो उस पर. तो बचपन से ही मैं सब लैंग्वेजेस में गाते आ रहा हूँ, बात कर डबिंग करते आ रहा हूँ. तो अब जाके मुझे लगता है कि यार थोड़ा कमांड है लैंग्वेज पे. बात नहीं कर पाता हूँ लैंग्वेजेस में, लेकिन गा तो पाता हूँ. ओके, कोई कन्नड़ा मूवी देखी है सर आपने? कन्नड़ा मूवी मैंने मुंगारू मले देखी है. कितने बार देखी थी? आई थिंक अराउंड 5-6 टाइम्स देखी. क्योंकि मुंगारू मले को तकरीबन 15-16 साल हो गए. करेक्ट. मैं पूजा गांधी जी से वही बोल रहा था, 16 साल हो गए, चलो इंटरव्यू करते हैं. ओके, तो अरमान मलिक, ये नाम सुनने के तुरंत आपके माइंड में क्या आता है? हम सबको तो एक अंधेरी जगहों में कहीं रोशनी छाती हुई लगता है. अरे मतलब फुल पोएट्री मार रहे सर. मेरा खुद का नाम सुन के मुझे क्या लगता है? बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये तो.
इन्होंने बाउंसर फेंक दिया मेरे ऊपर। मेरा खुद का नाम सुन के क्या बोलूं, मतलब खुद के बारे में हाउ कैन यू एवर स्पीक, आई डोंट नो। नहीं ऐसा कुछ रहता है ना, हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आता है मेरा नाम सुनने के। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस जरूर आता है। ओके सर, मैं जब पहली बार आपको डायरेक्टली देखा था हैदराबाद में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई परिंदा नूर सा छाया हुआ खड़ा है हैदराबाद में, ऐसा कुछ लग रहा था। आपको कौन से एक्टर को देख के ये फीलिंग हुई थी, या फिर कौन से हीरोइन को देख के ऐसी फीलिंग आई थी आपको? वाओ, ये वापस मतलब मुझे टफ क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं सब। साउथ इंडियन एक्टर्स, नॉर्थ इंडियन एक्टर्स, एनी एक्टर्स? रणबीर कपूर। वाओ, ओके, कहाँ देखा था पहली बार? उनको मैं एक पुलिस शो था वहाँ पे मिला था, मैं परफॉर्म कर रहा था, वो भी गेस्ट आए हुए थे, उनके बाजू में बैठा हुआ था मैं, एंड आई रियली लव हिज एक्टिंग, एंड जब मैं उनको मिला इट वाज रियली रियली स्पेशल। फिर उन्हें मैंने साइमा में भी मिला हूँ मैं उनको, आई थिंक आबू धाबी में साइमा हुआ था एक साल, एंड वहाँ पे वो आए थे, तो वहाँ पे मैं मिला उनसे, एंड उन्होंने कहा कि आई होप दैट वन डे यू सिंग फॉर वन ऑफ माय मूवीज। एंड वो अभी तक ड्रीम फुलफिल करना बाकी है, सो आई होप टू सिंग समथिंग फॉर रणबीर कपूर वेरी सून। ओके, मेरे पास एक फोटो है, उसको कोलैज करके हूँ मैं, तो आपको वो फोटो दिखाऊंगा। वो फोटो देख के गाना कौन सा है बोलना चाहिए आपको। ओके, तो छोटा सा गेम। तुम बैग। हाँ, किट। किट। हाँ, तुम किट। हाँ, तू किट। अच्छा, उसको कट करना चाहिए किट को। तुम किट दैट्स अनन्या पांडे, राइट? हाँ, खूबसूरती। ओके, एंड आफ्टर दैट इज हार्ट। हाँ, दिल, फिदा हो जाना। ओके, तुम पता नहीं यार। तू कितनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। ये गाना कभी नहीं सुना मैंने। नहीं सुना था? ओके, नेक्स्ट। सब एक बाय एक बाउंसर भेज रहे मेरे तरफ। ये दूसरा, ये है सन सेट, मतलब सनसेट। ये मून है लेकिन बर्न हो रहा है। हाँ, अच्छा ऐसा सूरज हुआ मध्यम, यस, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने, ये है ग्लोबल वार्मिंग डाला। ओके, नेक्स्ट फोटो। Which actress is that? देसी गर्ल। Oh, that's Priyanka. तो गाने का नाम देसी गर्ल नहीं अलग है। पर देसी। अच्छा, परदेसी जाना नहीं। ओके, बहुत ही क्रिएटिव बनाया है। नेक्स्ट, मेहंदी लगा के रखना, हाँ, डोली सजा के रखना, करेक्ट? ये राख है लेकिन रख कट करना चाहिए। अच्छा, रखना। ओके, तो हमेशा सर, सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे हेल्प किया आंसर्स के लिए। ओके, तो हमेशा सर हम लोगों को ना, जब हम सैड रहते हैं या फिर खुश रहते हैं या फिर नाराज रहते हैं, तो एक एक गाना मूड वाइज सेट होता जाता है। करेक्ट। तो अरमान मलिक जी के साथ मैं एक रैपिड फायर खेलना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। ओके, अरमान मलिक जी, आप बहुत गुस्से में हैं, वो ये गाना सुनना चाहते हैं, कौन सा गाना रहेगा वो? गुस्से में हूँ? हाँ। मैं कभी गुस्सा होता ही नहीं। I know that. I don't know why. मैं कभी इतना गुस्सा होता नहीं हूँ, लेकिन अगर गाना चुनना हो तो जी करदा मर जाने दे मेरा जी करदा। क्यों ये बस उसमें वो थोड़ा एंगर है ना। हाँ। छल्ली कर दे सीना मेरा, कोई भी रॉक गाना जो बहुत हार्ड मेटल टाइप कोई म्यूजिक हो तो वो सुनूंगा मैं। ओके, अरमान मलिक जी को बहुत ही खुशी हो चुकी है, वो खुशी के मोमेंट में किसी के साथ नहीं मिलना चाहते, सिर्फ एक गाना सुनना चाहते हैं। ओके, वो गाना कौन सा रहेगा? बुद्धू समन। गा सकते हैं सर? कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता है, बुद्धू समन है। ओके, अरमान मलिक जी अब सोलो ट्रिप जा रहे हैं एक बाइक पे,
एकदम छाया हुआ सा आसमान, बरसता हुआ बारिश और हरियाली, जंगल, झाड़, पेड़ पौधे सब कुछ है। आप अकेले जा रहे हो बाइक पे, तो ये गाने के बिना आपका सोलो ट्रिप नहीं कंप्लीट होगा। तो कौन सा गाना? शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। वाओ, अमेजिंग। सर, ये जो गाना गाते हैं या फिर गाना सुनते हैं, वो लोग बहुत भावुक रहते हैं और फिर भावनाओं से जल्द कनेक्ट करते हैं। करेक्ट। तो आप कैसे हो? मैं भी वैसे ही हूँ। हाँ। इमोशनल हूँ। कभी रोया था अकेले? अकेले तो मतलब मैं बहुत कम रोता हूँ। हाँ। बहुत कम गुस्सा होता हूँ और कम रोता हूँ, लेकिन जब रोता हूँ तो काफी रोता हूँ। मैं रिसेंटली एक्चुअली एड शीरन के कॉन्सर्ट पे गया था कोपेनहेगन में। मैं उनसे मिला भी, उनके साथ कोलैबोरेशन भी हुई है मेरी। तो वो जब मैं उनके कॉन्सर्ट पे था, उन्होंने एक गाना गाया था जो मुझे बहुत सालों से बहुत पसंद है, एंड वो काफी मेमोरीज आ गए मेरे जहन में वो सुन के। तो वहाँ पे आई वाज क्राइंग एट द कॉन्सर्ट। या सो दैट वाज एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी, हैप्पी टीयर्स। ओके, हमेशा हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, लोगों से घुल मिल जाते हो, इतनी बड़ी शख्सियत हो आप। सिंह, आपका गाना सुन के हर कोई दीवाना रह जाता है। लोगों में घुलना मिलना उतना आसान नहीं होगा सेलिब्रिटी को। आप कैसे कर लेते हो ये सब? बस ऐसे ही हो जाता है। नो रॉकेट साइंस टू दैट। मुझे लगता है कि आप जिस तरीके के आप आर्टिस्ट हो ना, उस तरीके के फैंस भी आप अट्रैक्ट करते हो। तो आई फील लाइक आई एम समवन हु लव्स स्प्रेडिंग लव एंड पीस एंड हैप्पीनेस एंड स्माइल्स। तो मुस्कुराते हुए चेहरे मेरे पास आते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलजुल के प्यार बांटना और प्यार लेना। ओके, 3 फैन जो वियर्ड लगते हैं ना, वियर्ड फैन मूवमेंट रहता है, वो 3 फैन वियर्ड मूवमेंट को शेयर करना चाहेंगे तो कौन से मूवमेंट ठक 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 आपके माइंड में आते हैं? ऐसे तो इतने सारे वियर्ड नहीं हुए। हाँ। लेकिन एक बार मुझे एक खत मिला था रिटन इन ब्लड, व्हिच वाज लिटिल वियर्ड फॉर मी। आपके एक्टर्स को भी नहीं आता शायद। ये मेरे को एक्चुअली 5-6 साल पहले आया था। ओह। जब मेरी शुरुआत हुई थी, डेब्यू, आई थिंक बॉलीवुड में 2 साल ही हुए थे मुझे एज एन अडल्ट प्लेबैक सिंगर, एंड कुछ लेटर आया था, फैन लेटर। तो मैं बहुत डर गया था वो देख के। तो वो डर क्या लिखा था उस लेटर में? मतलब वही दैट I love you and I don't think I can ever live without your music and you and all. I was like, I love the emotion behind it, लेकिन मतलब खून में लिखने की जरूरत नहीं थी। So I posted about it on Twitter also, saying कि whoever the fan is, please don't do something like this. Oh my God. Okay. दूसरा मोमेंट? एक फैन थी जो ग्रीन रूम में, मैं बैक स्टेज था एक्चुअली। स्टेज पे जाने से पहले सिर्फ 5 मिनट बचे हुए थे, एंड ये आई थिंक गुजरात में था शो, एंड इट वाज अ कॉलेज शो, एंड शी वाज नॉट लेटिंग मी गो ऑन स्टेज। She came into my green room, hugged me and was crying, and she was not leaving me only. So she was like, no, I'm not going to let you go. I'm not letting you go on stage. And मैं बोल रहा कि मेरा intro बच चुका है, लोग मुझे stage पे बुला रहे। So that was, it took a while to, calm her down, and then I could go on stage. तो 15-20 मिनट उसमें लग गए थे। Oh my God. Okay, तो तीसरा नहीं है। ओके, कोई ऐसे मैसेजेस हो या फिर कॉल्स हो जो आपको लगातार परेशान करते रहते हैं, ऐसे कुछ हुआ था? नहीं, मैंने नंबर चेंज कर लिया अभी। अच्छा, अरमान मलिक जी का नंबर, लास्ट 3 नंबर्स। नहीं दूंगा मैं। है एक्चुअली इंटरनेट पे है ऑलरेडी। ओह, इतना वायरल हो गया था वो? हाँ, इसलिए तो छोड़ दिया मैंने वो नंबर। अब कौन सा नंबर है सर? अब थोड़ी ना दूंगा मैं। वो सीक्रेट है। ओके, सर, खूबसूरती का राज? खूबसूरती का राज पता नहीं, मुझे लगता है कि डब्बू मलिक एंड ज्योति मलिक का जो कॉम्बिनेशन है वही है खूबसूरती का राज। मेरा कुछ उसमें योगदान नहीं है। ओके, जब मैं ज्योति मैम को टेक्स्ट किया था, मैम ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और आपके इंटरव्यू के लिए हाँ कर दिया। तो आई वुड लव टू रिक्वेस्ट यू दैट एक सॉन्ग ज्योति मैम के लिए प्लीज। ऑफ कोर्स।
All I do is think about you. सब मिल गया जब से मिला तू. All I do is think about क्या होता मेरा जो ना होता मेरे साथ तू. So all I do is think about you. वाओ, अमेजिंग, सुपर. ज्योति मैम, थैंक यू सो मच क्योंकि आपने ये इंटरव्यू करवा दिया फाइनली. Yeah, हाँ. ओके, फर्स्ट क्रश. First and only crush Deepika Padukone. ओके, हमेशा के लिए. Yes. ओके, डन. सो कन्नड़ा में कुछ कहना चाहेंगे कन्नड़ा ऑडियंस? आप बोलो मुझे कुछ तो मैं वो उस आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए. मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ आपको. ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್. ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ನಿಮ್ಮವರೆಗೂ ತಲುಪಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್. थैंक यू सो मच सर, बहुत खुशी हुई. थैंक यू सो मच. हेलो हिंदू टॉक शो में बातचीत करने के लिए. एक साल बाद फिर से मुलाकात. यस. हो जाए छोटा सा गाना लास्ट. ओके, व्हिच वन डू यू वांट मी टू सिंग? एनीथिंग, एनी सॉन्ग. ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು, ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು, ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು. ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು, ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು, ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು. ವಾವ್, ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಠ ಅದು ಕಿವಿಯವರೆಗೂ ಬಂದು ತಲುಪುವಂತಹ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಟೀಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, बहुत ಖುಷಿ हुई आपसे बातचीत करके. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ ಸಿನೆ ಬೀಟ್ಸ್. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್.